to identify the gaps. Since there is a national need that what kind of human resources are required. Right. You already know about the industries, existing industries, upcoming industries, and also industries are coming with the new technologies. And most of the areas you will find that when industries are looking for the trained person, they are finding short of that, right? Sometimes they call for the interview, hundreds of students are coming, they didn't find any one of them suitable for the job. So it is the job of the universities and the colleges first to know the requirement of the industry, that is one, and then also to orient their teachers and professors that what should be our course curriculum to teach those students, train those students, and provide those skills which are required for the industry. And third, what you told that how a student will know. So for that, we need to have various awareness program. And in the beginning itself, as you told that when the students are in the intermediate or plus two, they themselves, they should be knowing that what are the opportunities. Based on their skills, interest, they can choose those courses, they can choose those campuses, and then they will get the good opportunity to get educated and follow their interest and their dream of the job. So these are the main objectives of this meeting, what we are discussing, where we have all the three stakeholders, academia, all the faculty and professors are there. They are trying to learn with the industry experts. They are also there. We have more than 20 industry experts and also government organizations. Two of them are sitting here along with sir. So we are just trying to know what are the gaps, at least in this meeting, to brainstorm and work on those gaps and move forward and have the programs and curriculum accordingly. But curriculum, when we talk to the industry itself and know as to what are their pain areas, where they are actually falling scarce of the skilled manpower, what are their pain areas, and if we incorporate it into our course and curriculum or our practices, probably would help your students get placed better. And that is what we are doing. This is what we are going to do. मेरा एक निवेदन है कि हम भारतीय भाषा में बात करेंगे, इंग्लिश में हम क्यों बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रेज किया कि बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या बात मैं चूज करना है। इसलिए यूजीसी ने पिछले साल में एक रिफॉर्म लाया कि स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ा होगा, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज़ लिया, लेकिन कॉलेज में आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी परमिट नहीं करेंगे। अब यूजीसी ने कहा कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एक एंट्रेंस लेके इनका फिजिक्स का कॉम्पिटेंसी दिखाए तो इनको परमिट कीजिए फिजिक्स डिग्री में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फिजिक्स डिग्री में ज्वाइन करने के बाद भी एक साल में पता चलेगा स्टूडेंट को कि नहीं, मैं डेटा साइंस करना चाहता हूँ, फिजिक्स नहीं। तो इसके लिए भी हम सुविधा क्रिएट किया हमारे रेगुलेशंस में। आप एक मेजर फिजिक्स में कीजिए, लेकिन दूसरा मेजर आप डेटा साइंस में कीजिए, नहीं तो दूसरा मेजर आप आर्कियोलॉजी में कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मैं यूजीसी में लाया कि स्टूडेंट्स को दो गोल्स होता है, एक एकेडमिक गोल होता है, एक करियर गोल होता है। तो ये भी एक नया रेगुलेशंस लाया, गाइडलाइंस लाया। इसमें हम कहा कि आप हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, ठीक है, 50% क्रेडिट्स को आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन जो 50 क्रेडिट्स हैं, दूसरा 50 क्रेडिट्स, इसमें 50% क्रेडिट्स, इसमें आप 10% लॉजिस्टिक्स कीजिए, 10% बैंकिंग कीजिए, 10% फाइनेंस में कीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट्स। तो इससे फायदा क्या होगा, स्टूडेंट का एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा। तो ये सभी विषय में यूजीसी सोच रहा है और एनईपी 2020 के वजह से ये रिफॉर्म्स पे हम ला रहा है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस हम बढ़ाना।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी को इन्फॉर्म करने में आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। सर एक सवाल आजकल सर हम कौशल विकास को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे देश में या फिर उत्तर प्रदेश में भी कितने कॉलेज ऐसे हैं जहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर बने नहीं हुए। एक उदाहरण के तौर पे कि हम कॉलेज में कोई लैब बना लेते हैं, लेकिन उसके संचालन के लिए हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। तो इसको लेकर सर मतलब क्या तैयारी है यूजीसी की तरफ से, कोई ग्रांट या फिर स्किल के लिए, कौशल विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स शुरू किया। पीएम कौशल विकास प्रोग्राम एक है और पीएम इंटर्नशिप स्कीम दूसरा है, और यूजीसी भी स्किल इंटीग्रेशन के लिए नया नया कोर्सेस वो भी हम चालू किया। बहुत दिशा से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्री इतना बड़ा है, ये इंफॉर्मेशन पर्कुलेट होना और इसमें टीचर्स को भी हम ट्रेन करना है। इसलिए 2 साल के पहले यूजीसी ने एक प्रोग्राम को शुरू किया, इसको कहते हैं मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 2 हफ्ते का प्रोग्राम है। इसमें हम हमारा टीचर्स को ट्रेन करेंगे कैसा नई नई चीज़ों को हम हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लाना है, कैसा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, कैसा टीचर्स देमसेल्व्स शुड बिकम स्किल एजुकेशन प्रोवाइडर्स। सो अलग अलग पाथवे से हम ये कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट्स देखने के लिए टाइम भी लगेगा। और आपको पता होगा 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% हम करना चाहते हैं। तो लेकिन हमारा यूनिवर्सिटीज में स्पेस है क्या? इतना लोग आए तो हम इतनी कम समय में बहुत लार्ज नंबर में यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यूजीसी कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड लर्निंग को प्रमोट कीजिए। जैसा मैं 2 साल कॉलेज में पढ़ूंगा और दूसरा 2 साल मैं ऑनलाइन में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं कंप्लीटली ऑनलाइन में घर में बैठ के पढ़ूंगा। सभी डिग्रीज को हम एक समान मानना है, और एम्प्लॉयमेंट में हो, हायर एजुकेशन के लिए हो, तो हाइब्रिड लर्निंग को भी हम प्रमोट कर रहा है। लेकिन सर हाइब्रिड लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन है, इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो रेगुलर लर्निंग के बराबर नहीं होगा। सर ये हम जो गैप है उसको हम बांट नहीं पा रहे हैं। मतलब हम हाइब्रिड लर्निंग को कर तो रहे हैं को प्रमोट, लेकिन वो जो गैप है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है, क्लासरूम और वर्चुअल में बहुत अंतर है, तो सर इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, आप ग्लोबली और नेशनली भी हायरिंग ट्रेंड्स को आप देखें तो जो कंपनीज जो हायर कर रहा है वो नहीं देखेंगे आप ऑनलाइन में पढ़ा, ऑफलाइन में पढ़ा, आपका डिग्री क्या है वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका स्किल्स क्या है। उसीलिए हम प्रमोट कर रहा है कि यूजिंग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आप माइक्रो क्रेडिट्स को ऑन कीजिए। 10 क्रेडिट एरिया में, 10 क्रेडिट और अलग एरिया में, और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में रख दीजिए। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट से आपको काम मिलेगा। और लाखों लोगों को अभी सर्टिफिकेट करने के बाद ही जॉब मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट्स को इतना दिक्कत हम क्यों क्रिएट करना है, डिग्री करने के बाद सेपरेटली सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है, इसको फीस पेमेंट करना है, टाइम स्पेंड करना है, इसको हम निकाल के वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को आप डिग्री प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। ये भी हम डिस्कस कर रहा है आज का मीटिंग में। सर जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति रही है ऋषि मुनियों की, वो सीखने की रही है, और अब आने वाला समय जो है टीचिंग और लर्निंग के साथ साथ सर जो मोदी जी ने विकसित भारत का 47 का एजेंडा तय किया है, आप किस तरह से देखते हैं कौशल को, स्किल्स को? देखिए, हमारा रिजल्ट तो है 2047 तक हम हमारा देश को विकसित भारत बनाएंगे जी। लेकिन आपको ये भी पता है कि 60 to 70% हमारा यूथ जो है वो गांव में रहते हैं। क्या वो सभी लोग यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं? क्या एक शहर को आके इधर रूम रेंट लेके पढ़ सकते हैं? क्या इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है? क्या ये भी हम देखना चाहिए। इनका इमीडिएट नीड क्या है? स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए,
लोकली भी काम करके रोजगार में जोड़ने के लिए हम स्किल्स प्रोवाइड करना चाहिए। उसीलिए जैसा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है, अब तक जो डिग्रीज आप दिया वो दिया, लेकिन अब इसको आप ट्रांसफॉर्म करना है। हमारा यूथ लोगों को क्या चाहिए, इसके लाइन में आप आपका डिग्री प्रोग्राम्स को चेंज करके देना चाहिए। इससे क्या होगा, सभी यंग लोगों को हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज में जोड़ने का मौका मिलेगा। तो दैट इज द ओनली वे वी कैन हमारा देश को विकसित भारत कर सकते हैं। क्यों में लास्ट आदमी तक हम पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन एलिटिस्ट है, जिनके पास पैसा है वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। सभी लोगों के पास हमारा एजुकेशन जाना चाहिए, लास्ट पर्सन तक जाना चाहिए, ये हमारा रिजर्व है। सर, क्या आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति जो है वो कौशल विकास और सीखने के ऊपर जोर दे रही है? नई शिक्षा नीति कौशल विकास के ऊपर जोर दे रही है। आपको लगता है टॉप प्रायोरिटी है कौशल शिक्षा प्रोवाइड करना। NEP 2020 का बहुत टॉप प्रायोरिटी है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, इसके साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ लीजिए। इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं। और सभी यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम गाइडलाइंस लाया है, रेगुलेशंस भी लाया है, और इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए पूरा देश में हम जोनल मीटिंग्स करते हैं। पिछले हफ्ते में हम सेंट्रल जोन में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश हम 200 वाइस चांसलर्स को, 500 प्रिंसिपल्स को लाके एक दिन का ब्रेनस्टॉर्म किया और कौशल विकास के लिए, कौशल विद्या के लिए अवेयरनेस लाने के लिए हम कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। एक और बात मैं आज की मीटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से परिवेश बदल रहा है। आप अगर बाजार को भी देखें तो 20 साल पहले छोटी दुकानें होती थी, उससे फिर मॉल्स आए और आज हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले गए। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया आज के हिसाब से, वो ऑब्सोलीट हो गए, और जिन्होंने उस स्किल को, उस कौशल को अपग्रेड कर दिया, आज वो आज की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, वो आज भी प्रोस्पेरस है। अब हमारे काफ़ी बच्चे, जैसे प्रोफेसर कुमार ने बताया कि गांव के परिवेश से आते हैं। गांव के परिवेश से शहर में आने के बाद में उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि वो कहीं पे जाके जॉब करें, वो अपना भी छोटा छोटा उद्योग धंधा लगा सकते हैं, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं बताऊं कि 98% गांव का जो उत्पाद है वो रॉ मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। उसमें अगर हम इन सीटू वैल्यू एडिशन करें, यानी कि जो चीजें बन रही हैं उसको कच्चे माल की तरह गांव से बाहर ना भेजें, प्रोडक्ट के माध्यम से उसको गांव के बाहर भेजें, तो वो बच्चे को रोजगार भी वहीं मिलेगा और वो अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए एक अच्छा नेटवर्क। एक अच्छे नेटवर्क में वो लोग जो उसकी कौशल में वृद्धि कर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे हैं। एक अच्छे वो लोग जो उसको मार्केट के लिए रास्ता दिखा सकते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। एक वो लोग जो उसके लिए फंड मुहैया करा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनके साथ में भी नेटवर्किंग की जाएगी। और वो लोग जो सरकार में है और उस तरह की पॉलिसी को सरकार के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो लोग भी आज इस मीटिंग के अंदर रहे। उन्होंने अपने अपने इनपुट की दिए। तो आपने एक सवाल पूछा कि इसको लागू करें, कब करेंगे? ये एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। जो आज रिलेवेंट है वो कल रिलेवेंट नहीं होगा, और जो कल रिलेवेंट है होगा वो शायद परसों रिलेवेंट नहीं होगा। तो हमें अपनी जो नीड है उसको कंटिन्यूअसली असेस करना पड़ेगा, और हमें आगे रहने के लिए उसके लिए आज से तैयार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम तैयार होंगे। हमें कल हमारा देश कैसे होगा, हमारा बाजार कैसे होगा,
हमारे गांव कैसे होंगे, हमारे शहर कैसे होंगे, उनके लिए मैं कितना उपयुक्त आज सीख सकता हूं और कल के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूं, तो वो भी उस कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनेंगे। और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रिलेवेंट बच्चा रहे और वो देश के निर्माण में, जो बोलते हैं ना, सरकार का उद्देश्य है कौशल से विकास, कौशल पर काम करना यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है और वो देश के विकास में लगे, ना कि बेरोजगार रहे, ये उद्देश्य है। Thank you, everyone.